अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिलकश द टॉक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप लोग शायद हर रोज़ उनको अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं ऑलमोस्ट सेम टाइम पे, पर आज यहाँ वो इसलिए हैं, वो शायद इसलिए नहीं है जिस वजह से आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अली हैदर। अली हैदर इज़ ऑन योर स्क्रीन एज अ जर्नलिस्ट, पर यहाँ पे हम बात करेंगे उनसे रिलेशनशिप्स के बारे में, बिकॉज विजडम किसको नहीं चाहिए। So let's talk to him. Assalamualaikum Ali. Walaikum assalam. Thank you for your time first of all. Pleasure is mine. So Ali, हम थोड़ा सा शुरू से शुरू करेंगे. Your journey as a journalist and anchor, and why do you want to become a journalist? Okay, I think I don't have to sugarcoat things. Actually, I was looking for a job, and there were job offerings at certain media outlets. होता ये था कि in those very times, I'm talking about 2007, 2008, media was booming. The news media industry was booming, flourishing. और एक बड़ी lucrative और बड़ी attractive job लगती थी. You will get famous, you will get good paychecks. एक lifestyle different है, बड़ा flamboyant सा आपका lifestyle होगा. So everybody was looking after it. And if you remember, you may not, I guess you might be very young at that time. The generation was into mass comm, and they were, enrolling themselves in universities for mass comm. So I thought, why not give it a shot? So it was just a tukka कि शायद ऐसा हो जाए. I was a debater in my college days, so I thought I might be able to take a chance. So you had always that personality of, I felt that I can do that. I can talk. So this was something which was I think I could do, and I could do justice with. मैंने ऑडिशन दिया जाके, 250-300 बंदा था वहाँ पे, हो गया. उन्होंने कहा आ जाओ लड़के, आ जाओ आके खबरें पढ़ो. I started that, and उसके बाद तो मतलब it started from a very small channel. उसके बाद then gradually then Express News, then ARY. And did you love it the whole time? I used to love it. I used to love my job. I mean, when I say I used to love my job, so you must be thinking, or you may be asking that something has changed now. That why are you saying that exactly. you used to do that? Yes, now that's the next question. Why don't you love it now? I think we are not doing justice to it. Oscar Wilde said that journalism is to criticize someone you can't criticize. Everything else is PR. So nowadays we can't raise issues which are supposed to be addressed. So इसके अलावा जो कुछ हो रहा है, PR हो रही है. So I don't think so. I signed up for this. I didn't sign up for this. I signed up for. I have a duty towards my nation. If I'm not fulfilling it, I think so. I'm just wasting time. आप कह सकते हैं कि आज की जो न्यूज़ है, that's just mere words and no truth to that. You know what problem क्या है नूर? झूठ से ज़्यादा खतरनाक आधा सच होता है. झूठ भी खतरनाक है, I agree. बट झूठ से ज़्यादा खतरनाक आधा सच इसलिए होता है because it leaves you hanging with the confused state of mind. अच्छा, अब आपने आवाम को आधा सच बता दिया, आधा नहीं बताया, so they will carve their decisions accordingly. झूठ का तो ये ना कि आपने झूठ बोला तो या तो वो चुप करके बैठ गए, उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया. आपने उनको आधा सच बताया, अब वो अपने डिसीजंस, अपने फैसले बेस करेंगे उस आधे सच के ऊपर. बकिया सच उनको पता ही नहीं है. वो जो फैसला करेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो एग्जीक्यूट करेंगे उसके रेप्रिकॉशंस फौरी तौर पे आएंगी. क्या होगा, आपकी सोसाइटी का जो इतना भी सोशल फैब्रिक है वो खराब होने लग जाएगा. सो अब जो मीडिया पे हो रहा है, एंड आई थिंक ये शायद बहुत से लोगों को बात मेरी खासतौर पे मीडिया वालों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ ये बात कर देता हूँ कि यार मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, आपको आ रहा है, आप लगे रहें. आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. लेकिन मैं भी नहीं कहूँगा कि 100% झूठ है, 20% है सच उसके ऊपर, लेकिन 80% अभी भी मेरी लगामें जो है वो खिंची हुई है किसी ना किसी के हाथ में. बस ये हमेशा से रहा है. ठीक है. सो अब ये जो आपका एक बहुत बड़ा शिफ्ट दैट आई सी ऑन सोशल मीडिया एंड व्लॉगिंग या यूट्यूब पे, दैट्स टुवर्ड्स रिलेशनशिप साइड. मतलब was it always there? I think it was there. Sometimes you don't explore yourself. Things are, hidden deep down somewhere. You don't know that. You do feel कि अच्छा यार, I have an opinion on this.
बट आपको ये पता नहीं होता कि पीपल वुड वांट टू हियर व्हाट यू हैव टू से. एग्जैक्टली. आई डिड नॉट नो कि मेरा ये साइड जो है लोग जानना पसंद करेंगे. आई वॉज इनटू सोशल इश्यूज सिंस द बिगिनिंग. मैं जब टीवी पर जर्नलिज्म कर रहा था तब भी मुझे मोटिवेट करती थी सोशल स्टोरीज. बिकॉज मुझे ये अभी भी लगता है कि हम शाम 7 बजे जो एक थिएटर खुलता है और टॉक शो शुरू हो जाते हैं. मैं खुद एक टॉक शो होस्ट हूँ, मैं टॉक शो कर रहा होता हूँ, लेकिन उसको थिएटर इसलिए कहूँगा कि नॉनसेंस, एंड लेट मी बी वेरी लाउड एंड क्लियर, नॉनसेंस बोली जा रही होती है, किसी काम की बात नहीं बोली जा रही होती है, और हमने कौम को जो है वो ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है. फलां पॉलिटिशियन ने ये बयान दे दिया, फलां ने वो बयान. आपको कोई फर्क पड़ता है? I'm asking you. Honestly, no. नहीं पड़ता. No. मैं एग्जाम्पल देता हूँ. जेल में बैठे एक सियासी रहनुमा है, उन्होंने एक बयान दे दिया. आपकी शाम की रोटी उस बयान से आएगी? नहीं आएगी. आपके बिजली का बिल उस बयान से नहीं भरा जाएगा. मैं शाम का वो प्राइम टाइम जो एक टाइम है जिससे मुझे लाखों रुपए के एड्स भी मिले हुए हैं, मैं उस बयान को क्यों रगड़ रहा हूँ पकड़ के? हाँ, ये प्रॉब्लम आपका है कि आपकी गली में गटर के ढक्कन खुले हुए हैं जिससे कोई बच्चा गिर के मर सकता है. दैट्स योर प्रॉब्लम. इट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ. ये प्रॉब्लम है. But that shouldn't be my problem. That should be the politician's problem. Exactly, and I should be the one addressing to it, ना. I should be the one rubbing it on their face कि भाई आपने वोट लिया था यहाँ से, उस इलाके में अभी भी मगिंग हो रही है, रहजनी हो रही है, लूटे जा रहे हैं लोग. Am I saying that? No. So am I doing justice to it? आप मुझे देख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो मुझे, 1 घंटा आपने अपने टाइम से निकाला, आप मुझे देख रहे हो, एड मुझे मिल रहा है. मुझे इससे एक्चुअली आपकी स्टोरी से भी खुद भी याद आ गया. मेरे सो वेयर माई पेरेंट्स लिव, वो थोड़ा सा आई वोंट से अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, और वो कोई मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर का लंबा नाला है जिसके गिर्द कोई फेंस नहीं है, और वो बिल्कुल रोड लेवल पे आया हुआ है. बारिश होती है तो ओवरफ्लो भी कर रहा होता है रोड के ऊपर. एंड सर्दियों में जब फॉग बहुत ज़्यादा थी, स्मॉग और वो सब चीज़ें, तो एक गाड़ी गिर गई, उसमें 3 लोग थे, और वो फॉग इतनी थी कि किसी को नज़र नहीं आया, नोबडी कुड हेल्प. तो सुबह उनकी डेड बॉडीज़ और गाड़ी वहाँ से मिली. एंड आई सीन काउंटलेस पीपल फॉलिंग इनटू. कभी ट्रक गिर गया, कभी कुछ गिर. एंड दैट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स. इलेक्शन से पहले इतनी हसल बसल थी वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हो रही है, एंड वी थॉट फाइनली ओके अब कुछ होने वाला. एज सून एज इलेक्शन शुरू हुए वहाँ पे ऐसे खामोशी, और अब जो मेरे ख्याल से जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी वो भी वहीं पे पड़ी हुई. तो अब मेरा काम क्या बनता है यहाँ पे? आप मुझे वो अपना प्रेशियस टाइम दे रहे हो. आप साउथ बॉल का ड्रामा भी देख सकते थे, बट आप मुझे वो टाइम दे रहे हो. मेरा काम क्या बनता है? मैं माइक लेकर वहाँ पहुँचा हूँ. अब मैं कहूँ कि यार, अब मैं पूछूँ इनसे कि यार आपने वादा किया था इस, और वोट लिया था आपने कि आप ये कंस्ट्रक्शन कर दोगे, आपने नहीं किया. मैं क्या कह रहा हूँ? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है. अच्छा, अब मुझे एक और बड़ी अजीब बात लगती है. अच्छा ये बताइए, सदर आसिफ अली जरदारी क्या करेंगे? तुझे कैसे पता क्या करेंगे? हाउ वुड यू नो? मैं बैठ के तजिया दे रहा हूँ वहाँ पे जनाब कि मुझे ये लगता है कि जो फला इदारे के सरबराह है वो ये सोच रहे हैं. तुम्हारे क्या उनके ख्वाबों पे बह रहा है? तुम उनके दिल की मलिका हो कि उनकी सोच पे तुम्हारा बह रहा है? हाउ वुड यू नो? ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे तजिए है ना किसी की सोच पे होते हैं, कि किसी, मुझे लगता है कि वो ये सोच रहा होगा, तो सोचते थे भाई I think अवाम भी उसी पे चल रही है हमारी. It's a drug. वो कहते हैं ना कि जैसे अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं, तो फिर अवाम भी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले करती है. आपके जो देखने वाले हैं, मे बी इट मे साउंड ऑफेंसिव टू देम, बट आई कांट होल्ड माई सेल्फ बैक. आपका टेस्ट बहुत बुरा है. आई एम सॉरी टू से. काम की बातें आप लोग नहीं देखते हो. आपका टेस्ट इतना बुरा है कि यहाँ पे ऐसे लोगों को आपने स्टार बना दिया है. एंड दिस इज आई मीन इट का शायद साउंड बाइट निकल आए और लोग अलग से क्लिप इसको चला के वायरल कर दें. आप लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो सिर्फ अपनी फैमिलीज दिखा के रेटिंग ले रहे होते हैं, एंड यू हैव मेड देम स्टार्स. ट्रस्ट मी. मैं इनसे शिकायत करता हूँ. हमारे पाकिस्तान में इतना अच्छा कंटेंट क्रिएटर बैठा हुआ है जो एजुकेशन भी कर रहा है, आपको एंटरटेन भी कर रहा है. हमने क्या दिखाना है? ये देखो मेरी बीवी नाश्ता कर रही है, ये देखो अब नहा के आ गई है. मतलब उसकी डेली रूटीन, उसकी ब्यूटी रिजीम जो है वो दिखा के मैं रेटिंग दे रहा हूँ. डूड, पहली बात तो ये है कि तुम क्या कर रहे हो, एक बात ये, और दूसरी तुम अवाम को क्या दिखा रहे हो. और अवाम नीचे तालियां, फुला भाई, मतलब ये भाई यू आर ऑसम. आपके टेस्ट के सदके मैं अब क्या बताऊँ आपको फिर यही मिलेगा. हमारे इन्फ्लुएंसर ने टेंट करवाई थी तो उनके फैन ने टेंट करवा लिया. हमारे इन्फ्लुएंसर, मैं तो कहता हूँ किसी दिन कुएं में छलांग ना लगा दें. इनमें से आधों ने कुएं में छलांग लगा देनी है. तो आई जस्ट डोंट गेट इट. हम खुद भी ऐसे ही हैं.
जिन लोगों ने हमें हाँकना शुरू किया हो ना, वो जो शेपर्ड्स हैं हमारे, वो भी ऐसे ही हैं. हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे सो कॉल्ड स्टार्स जिनको हमने बनाया हुआ है, वो भी ऐसे ही हैं. सो द नेशन इज डिफाइंड बाय इट्स हीरोज, द काइंड ऑफ हीरोज दैट वी हैव मेड. आप खुद देख रहे हैं नेशन का क्या हाल है, वहाँ पे यही होगा. उड़ना बनता है मेरा, आई थिंक सबका ही बनता है ना, तो कहीं बस ना मैं कहीं यही सबका कर ही रहा हूँ. बनता है. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. ये जब सब कुड़ना शुरू हो जाएंगे आई थिंक तभी कोई इम्पैक्ट भी आएगा. कुड़ना मीन्स रियलाइजेशन. यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि समथिंग इज रॉन्ग. वी आर सो ब्लाइंड अपने आप में ही कहीं कि हम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं. अभी मैं पहले भी कुछ देर पहले भी हम ये बात करते हैं कि सेल्फ ऑब्सेशन हैज़ बिकम, वो सेल्फ लव की जगह सेल्फ ऑब्सेशन. सेल्फ लव इज़ वन थिंग, सेल्फ ऑब्सेशन वो जिस तरह कहते हैं ना, बहुत थिन लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में. वही वाली चीज़ है कि सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में. चलो ये है ना बेटा कि सॉरी, आप मुझसे उम्र में छोटे हो, मैं इसलिए आपको बेटा कह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ नहीं सिखा सकते. अब अगर यहाँ बैठे हो ना तो मैं भाषण दे के जाऊँगा आपको, मैंने आपसे कुछ नहीं सीखना. यू आर द नेक्स्ट जनरेशन. देयर आर पॉसिबिलिटीज एंड काउंटलेस पॉसिबिलिटीज, दैट थिंग्स यू नो आई मे नॉट नो. सो मेरा सेल्फ ऑब्सेशन मुझे रोक के रखेगा, मेरी ईगो मुझे रोक के रखेगी कि व्हाई शुड आई बी द वन ऑन दैट द लर्निंग साइड. आई वॉन्ट डू दैट. हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका, तू वो डमामा, ये क्या है जुमला. औरत के लिए मैं अक्सर बात करता हूँ और ये बात बहुत मर्दों को बुरी भी लगती है. हमारे माशरे में क्या होता है, खातून अगर घर के मर्दों में जाके बताए कि जी मेरी तजवीज़ ये है, और तू चुप कर बंदियां नू गल करन दे, उन्होंने बंदा भी नहीं समझते. ये हमारे यहाँ होता है. अब गांव में तो छोड़े, शहरों में भी देसी फैमिलीज, हम सब देसी फैमिलीज से हैं, और बंदियां नू गल करन दे. घर के बड़े डिसीजंस में औरत का कोई रोल ही नहीं है. तो वो बंदा नहीं है, वो कोई और स्पीशीज है, वो हज़रत आदम की औलाद नहीं है. जो शोविनिज्म है वो इतना ज़्यादा है कि हमने उसको इस काबिल भी नहीं समझा हुआ औरत को कि वो ओपिनियन भी दे सकती है. और मैंने ये खुद तजर्बा करके देखा है थ्रू माई वाइफ कि कभी कभी जो औरत का ओपिनियन होता है वो इतना स्टैगरिंग, इतना कैलकुलेटेड होता है. हम कभी कभी गलत डिसीजन ले रहे होते हैं, अपनी ईगो को सामने रख के ले रहे होते हैं, कभी कभी जिद में ले रहे होते हैं, मैं छड़ांगा नहीं. औरत प्रैग्मेटिकली दूर बैठ के बर्ड आई व्यू से देख रही होती है कि ये फंसने जा रहा है. वो आपको बताती है कि नहीं, आई थिंक डोंट डू दैट. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे उसके डिसीजन कैलकुलेटेड होते हैं. औरत के डिसीजंस में एक इमोशनल भी होता है, इमोशनल एक वैल्यू होती है, वो एलिमेंट होता है. बट व्हाई नॉट मेक अ ब्लेंड ऑफ इट. आई मीन अ मैन एंड अ वाइफ, अ मैन एंड अ विमन, इवन इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड, शी इज अ फीमेल फ्रेंड, why not take advantage of her intellect, of her pragmatic or emotional thing, approach, and your pragmatic approach. Make a blend of it. इतना अच्छा डिसीजन कई दफ़ा ऐसा होता है, और मेरे साथ तो हुआ है कि आई वॉज ब्लेस्ड कि अच्छे डिसीजन हो जाते. हमारे लिए ख़ास एक लफ्ज़ भी होता है जो अक्सर कमेंट में लिख दिया जाता है, वो लिखा जाएगा. अब हम इसी में बात करते हैं. आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, विच आई लव, अबाउट वुमेन. तो वाज इट बिकॉज ऑफ योर वाइफ or anybody particular in your family that you think it wasn't the same always. I'm from a small town actually. और आपको पता है देहातों में क्या ओपिनियन होता है बंदों का, मैं नहीं बच्चा चुकना, मैं पैम्पर चेंज करांगा. Oh, I used to feel that. I said, no, I can't do that. It's an insult for me. My manlyhood will be stained forever. How can I do that? No. यहाँ से इस माइंडसेट से एक बंदा उठ के आता है और उसको जब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है, पता नहीं शायद अल्लाह ने मुझे बेटियां दे दी, उन्होंने कहा ये लो अब संभालो. एक दी, दूसरी बेटी आ गई, और उसके बाद मुझे समझो एहसास हुआ कि यार जो औरत का प्यार है ना, no one can match that. मैं अपनी बेटी को कहता हूँ छोटी अम्मी, she acts like my mother. और मुझे उसने एहसास दिलाया कि यार it's the most beautiful thing in the world. औरत का प्यार, मतलब I pity those people कि जिनको मिल रहा होता है और वो नहीं ले रहे होते. If a woman is there to love you, if woman says that okay, I'm here to love you, all you have to do is open yourself to her. Be honest and open yourself to her. यार आप नहीं ले रहे हो. मुझे बेटियों से एहसास हुआ. अभी छोटी सी बेटी इतने से उसके हाथ है, एंड यू नो मैं परेशान होता हूँ ना, शी हग्स मी एंड शी पैट्स मी. वो 2 उंगलियों का पैट जो होता है वो अजीब ताकत दे देता है आपको. एंड आई फेल्ट कि हाँ ये है. मैं माई वाइफ एज वेल. अब उन्होंने क्या किया, मुझे
एक चीज़ और समझाई, एक जो मर्द होता है ना, ये बड़ी अजीब बात लगेगी, मायूब भी लगेगी आपको, बट दैट्स अ फैक्ट, वो अपनी बीवी के अंदर एक अजीब सा माँ का प्यार ढूंढ रहा होता है. एंड आई स्ट्रांगली एडवाइज दोज वुमेन जो कहती हैं कि नहीं हम इक्वल है. मैं इस पर बहुत सख्त ओपिनियन रखता हूँ कि मुझे ज़्यादा राइट्स हैं और मैं इतना बेवकूफ़ मैं कह रहा हूँ नहीं इक्वल है, मेरे हिस्से में 100 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ नहीं इक्वल है. फिर ले ले यार, आपके हिस्से में ज़्यादा आ रहा है, आप इक्वालिटी के चक्कर में आपने जस्टिस, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी. आपने इक्वल के चक्कर में आपको ज़्यादा राइट्स मिल रहे थे, आपने वो भी फॉरगो कर दिए. बंदा कहीं ना कहीं लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है कि उसकी बीवी के अंदर थोड़ा सा एलिमेंट जो है ना वो माँ वाला होगा, थोड़ा सा वो इमोशनल अथॉरिटी वाली जो आई थिंक चीज़ है, वो इमोशनली खुद को सरेंडर करना चाह रहा होता है. उस सरेंडर किसके आगे करेगा? उसने बचपन में सारी जिंदगी सरेंडर किया अपनी माँ के आगे. नाउ देयर इज अनदर वुमन इन हिज लाइफ. वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि वो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बेबी बना लो अपना, डोंट डू दैट, बट ममता के बहुत से रूप होते हैं, उसमें फॉरगिव करना फॉरगो करना भी होता है. कुछ गलतियां जो फॉरगिव नहीं होती हैं, आई एग्री, बट उसके अंदर ख्याल रखना, केयर, ये सब कुछ है. एंड इट शुड रेसिप्रोकेट. ये नहीं है कि वही ख्याल रखी जा रही है और आप नवाब साहब की तरह आ रहे हैं, घर में जूता ये फेंका वो फेंका, ऑर्डर चल रहा है आपका. बट मर्द का केयर करने का एक डिफरेंट अंदाज होता है, क्योंकि औरत को जो है कुछ और चाहिए होता है, मर्द तो कुछ और चाहिए होता है. वो दोनों जब मैच कर रहे होते हैं तो आई गेस इट्स अ परफेक्ट थिंग. मुझे जो सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से आपने ये चीज़ डेवलप कहाँ से की है, माई वाइफ एंड माई डॉटर्स. तो मैं 3 ख़वातीन में घिरा हुआ एक आदमी हूँ जिसको एहसास हुआ कि नहीं यार ये खुद इसकी तो कोई सुनता ही नहीं है औरत की, चलो मैं ही बोलना शुरू कर दूँ. लेकिन मेरे ख्याल से मर्द भी कुछ जगहों पे, मतलब आई सीन मेन जो कि दे वांट टू डू पर दे कैन नॉट डू बिकॉज उनके फैमिली डायनामिक्स इस तरह के होते हैं कि वो ये नहीं कर पाते. इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए बंदे? आई गेस स्टिक टू योर पॉइंट. कुछ नहीं होता. अब देखिए, मुझे अभी भी आई गेट कमेंट्स, लॉट ऑफ हेट कमेंट्स. रनमरी तो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है ना, इससे भी आगे के कमेंट्स मुझे मिलते हैं. इग्नोर देम. सोसाइटी, आज आप चेंज करोगे खुद को, आपको देख के आपका बेटा करेगा. मेरा फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर होता लेट्स से, तो वो देखता कि बाप क्या कर रहा है यार, बाप इज्जत दे रहा है बेटी को, बाप इज्जत दे रहा है माँ को, वो कल को अपनी बीवी को भी इज्जत देगा. आप करना शुरू करो, एक जनरेशन लगेगी, थिंग्स विल गेट फाइन. आप पैम्पर चेंज कर लो. वो तो सोशल प्रेशर है ना, वो तो एक आउटर पिक्चर में हम देखते हैं. लेकिन विद इन द फैमिली लेट्स से देर आर पीपल लाइक, मैं भी एक बहुत क्लोज इंस्टेंस में, मेरी कज़न का इस तरह से भी, शी रिसेंटली गॉट मैरिड एंड द मदर हैज़ बीन अ विडो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ओनली सन, एंड द मदर इज़ नाउ insecure to the point where the marriage is, you know, on the verge of breaking. So फिर इसमें तो आई थिंक वो भी प्रेशराइज फील करता है लड़का भी कि मैं. अच्छा, मजे की बात ये है कि वो मदर भी औरत ही है, प्रॉब्लम भी उसको औरत से ही है. क्यों है ऐसा, कभी सोचा आपने? यही तो सवाल. वजह प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है, और अगेन ये मैं ये नहीं कह रहा कि सब औरतें ऐसी होती है, मैं एडवांस माजरत कर रहा हूँ, लेकिन ये एक कमी है. अब उस औरत ने अपने हस्बैंड से ये सब कुछ नहीं लिया, उसको नहीं मिला, ठीक है. हमसे जो पिछली जनरेशन थी वो तो बहुत ही रिजिड थे ना इन मामलात में, उसको नहीं मिला. अब उसका बेटा दे रहा है उस औरत को जो अभी अभी आई है, ये बर्दाश्त करना मुश्किल होता है. तो वो बेटा भी नहीं ना दे रहा, फिर वो बेटा शायद इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसको माँ से लड़के पड़ेंगे, माँ को हाँ, वो माँ के पास जाएगा, ओ माँ को जा, मेरे को की लेना है, यू नो, उसको भी ये ताना मिलेगा ना. अब प्रॉब्लम ये है कि हमने कुछ चीज़ें एम्बेड कर दी हुई हैं, एंड आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हमारे जो रिलीजियस हमारे स्कॉलर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ थोड़ा इस डॉगमा को ब्रेक करें कि हर चीज़ नाफरमानी नहीं होती है. अगर मैं अपने बड़ों को ये समझा रहा हूँ कि देखें आप थोड़ा यहाँ पे गलत पे हैं, बसद अदब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप गलत पे हैं, ऐसे नहीं करें, किसी की बेटी है, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं उसको. मैं बल्कि अक्सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी कि यार आप जब किसी नई नौकरी पे भी लगते हो ना, आपको उस जगह को समझने में 6 महीने लग जाते हैं. यार अब एक लड़की लेके आए हो अपने घर, उसको 6 महीने तो दो कि वो समझ पाए आप लोगों का मिजाज क्या है.
पुत्र होते और अरेंज मैरिजेस में तो आपको बंदे को समझने में 6 महीने लग जाते हैं, फैमिली को आप क्या शादी समझें? की पहली रात अहम घर की जिम्मेदारी तेरे थे, वो आखी बका बैठी हुई है, उसका मतलब अभी तक उसको वो शादी के उस पे वो म्यूजिक बज रहा है उसके, और वो हक्का बका, अच्छा पुत्र है बड़ा मामा जरा बीमार रहता, तेरी जिम्मेदारी भी तेरे थे। शी इज लाइक व्हाट डिड आई साइन अप फॉर। उसको आते साथ ही ना पुत्र कर दिया, किचन की चाबी तेरे को ले। तो यहाँ पे लड़कियां भी वो सेटल फॉर लेस कर लेती है ना कि बिफोर, आई थिंक नहीं, वो लड़की एक बेबस है। बेबस भी होगी, लेकिन अब आज के टाइम में इतना, क्योंकि अब तो कुछ मिलना शुरू हो गया, पहले तो वो भी नहीं मिलता था, लेकिन जस्ट द प्रेशर कि अच्छा शादी करनी है के चक्कर में वो फिर जो भी आता है ना, या वो अपने आप को वर्थ इट नहीं समझती इतना कि अच्छा हाँ हम भी कुछ हैं, क्योंकि हम लोगों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देख लें, एजुकेशन अच्छा मोटी है पतली है ये है वो है, एज इतनी निकल जाती है कि एक पॉइंट पे आके वो सरेंडर कर देती है कि अच्छा अब तो ठीक है जो भी आ रहा है हो जाए। लेकिन पर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे औरतों को इस चीज़ की एजुकेशन देना, और ये बहुत ग्राउंड लेवल पे नहीं, वो आपको मैसिव स्केल पे, जैसा हमारे पॉलिटिशियंस, अब जो हमारी सीएम है वो खुद को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट और वो वुमेन कहती हैं, लेकिन व्हाट इज शी डूइंग फॉर वुमेन? इज शी डूइंग एनीथिंग? I think I have to ponder upon what exactly is she doing for women. I hope that she must be doing something for the women. She herself is an embodiment of women empowerment. So I hope and pray. I mean, I don't have an opinion on it because it will turn into a political show if I start talking about it. But I hope, Madam Chief Minister, that you must be doing something for the women empowerment on educational level as well. आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। हम मर्द औरत तो जल्दी में तैयार होकर निकले ना घर से बाहर तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, होता है रास्ते में याद आता है कुछ ना कुछ भूल गए। अब लड़की 20 साल की 21 साल की हुई नहीं, आपने उस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, बेटा एज निकली जा रही है। मुझे बताएं कि मोहब्बत करने की कोई उम्र होती है? इज देयर एनी एज फॉर पर्टिकुलर एज फॉर दैट? यस, नहीं होती है। पहले तो मोहब्बत वाली शादी पे एक धब्बा है ना कि वो लव मैरिज है, नहीं फिर तो नहीं हो सकती, तो वो भी पता नहीं इसको हमने बना दिया ना। बनाया। मैं आई एम नॉट रिलीजियस स्कॉलर, बट इस्लाम की पहली शादी पसंद की शादी थी, और प्रपोजल भी एक औरत की तरफ से जा रहा है। सो इससे ज्यादा लिबरल क्या हो सकता तो हमारे स्कॉलर्स इस चीज़ पे एम्फसाइज नहीं ना करते, जैसे अभी उन्होंने तो वो भी इतनी इस तरह की चीज़ें आती हैं बहुत सी, इनको अगर मैं पॉइंट आउट करने बैठूँ कि जी आप जिससे भी आपकी ड्रामे में शादी हुई उससे आपकी शादी होगी असल में, तो इस तरह जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम इतने मतलब अजीब हो रही। मुझे वो बड़े दिन चला, वो ड्रामे में शादी हो गई तो हो गई है, सबकी हो गई, वो सारे एक्टर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छा मेरी इतनी बीवियां कहाँ हैं, मेरे वो कहाँ हैं, एग्जैक्टली। तो जो एक्चुअल इश्यूज हैं उन पे अगर हम शायद एम्फसाइज करना शुरू कर दें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। कि प्रॉब्लम यही है ना, हमने अपनी सोसाइटी को और बिलखुसूस औरत को हमने पता ही नहीं लगने दिया उसके राइट्स क्या क्या है, उसको बता ही नहीं पाए, या आई थिंक बताना चाहा भी नहीं। मैंने पहले भी ये बात की थी कि आपके राइट्स इतने ज़्यादा हैं, अगर मैंने आपको एजुकेट कर दिया तो मुझे लगता है कि मेरी अथॉरिटी ख़तरे में बढ़ जाएगी। आपका इतना राइट है, इस्लाम ने आपको वो राइट दिया है, आपको जो राइट नहीं दिया वो सोसाइटी ने नहीं दिया है, आपको हर चीज़ में पीछे डाल दिया। मैं अक्सर वाक़यात पढ़ रहा होता हूँ, अब मशवरे की बात हो रही है, जंगों में औरतों के मशवरे लिए जा रहे हैं, क्या जंगों में औरतें साथ भी जाती जा रही हैं, वो क्या करने जा रही हैं वहाँ? सो जिसने ये बना के पेश कर दिया कि अच्छा इसका एक पर्टिकुलर रोल है, उससे आगे इसका रोल नहीं है, तो उसने यकीन दिला दिया औरतों कि तुम वहीं तक कायम हो। उसको पता था अगर मैंने इसको अपने डोमेन में आने दिया तो कई मौकों पे मुझे आउटस्मार्ट कर जाएगी। क्योंकि एक और मसला भी तो है ना, मजबूत स्ट्रॉन्ग जो औरत होती है वो इंटिमिडेट कर रही होती है मर्दों को, खास तौर पे हमें अजीब सा एक डर होता है उस औरत से। स्ट्रॉन्ग वुमेन हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि एक तो हमारा जो मेल ईगो है वो बहुत जल्दी हर्ट होती है। आई वुड नॉट वांट अ फीमेल बॉस, आई वुड नॉट वांट कि नहीं यार मेरी कोई फीमेल बॉस और आई हैव टू आंसर दैट अ वुमन, तो ये भी हमें प्रॉब्लम एक हो रहा होता है। इस सब के बावजूद ना जी, अब टाइम्स हैव चेंज्ड। इस वक्त माशाल्लाह आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में होंगी और वो एक्सेल कर रही होंगी, अपनी फील्ड में काम कर रही होंगी, बट वो चेंज अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है। आप लोग, आप हो, बाकी ख़वातीन हैं, आप लोग इंस्पायर कर सकते हो उन औरतों को जो कि बाहर निकल रही हैं। अगेन मैं एक बहुत ही
मजबूत ब्राइट किस्म की रेड लाइन खींचता हूँ इसमें, और जो एक फेमिनिज्म की गलत तशरीह करके औरत को बाहर निकाल रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की एडवोकेसी कर रहा हूँ, उसकी इमेंसिपेशन की एडवोकेसी कर रहा हूँ, उसके राइट्स को एड्रेस करने की बात कर रहा हूँ। बट मैं ये नहीं कह रहा कि, जुमला मैं बड़े एहतियात से बोलना चाह रहा हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, मर्द बेजार औरत नहीं पैदा करो। इस माशरे के अंदर जो तवाज़ुन है ना, जो बैलेंस है, वो औरत और मर्द दोनों का है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मर्द ये नहीं कह सकता मुझे औरत की ज़रूरत नहीं है, और नेचुरली औरत भी नहीं कह सकती है कि आई डोंट नीड अ मैन इन माई लाइफ। वी बोथ नीड ईच अदर, एंड दिस इज हाउ दिस फैमिली स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन मैन एंड वुमेन। लेकिन एक और जो औरत को एम्पावर करने के नाम पे जो एक और खेल खेला जा रहा है कि यू डोंट नीड अ मैन इन योर लाइफ, वो एक्चुअल वही वो गलत है। अगेन वही बात आ जाती है कि वो जो एक्चुअल मसले हैं उनसे लाइट हटा के, जो कि कोई मसला ही नहीं उस पर। यार आपने कि आप ओवरडू कर रहे हो ना, ओवरडोज दे रहे हो। आपको अगर आप एक एंटीबायोटिक की एक गोली से ठीक हो सकते हो, मैं पूरे का पूरा इंजेक्शन ठोक रहा हूँ आपको, वो गलत है ना। आप उसको तालीम दो, वो खुद ही एम्पावरमेंट में आ जाएगी ऐसा ऐसा। बट आप उसे अगर ये कहो कि यार तुमने अपने बाप की बात नहीं माननी है, तुमने अपने शौहर के सामने ऐसे खड़े हो जाना है कि ये वो, तो ठीक है। अगर आपने अगर आप कह रहे हो यार कि सारे राइट्स मेरे हैं, तो कल को उससे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पे डाल दी कि ठीक है जाओ, फिर बिजली का बिल भी आधा आधा होगा, घर का रेंट भी आधा आधा होगा, बच्चों की स्कूल भी आधे आधे होगी। लो, माई पॉइंट इज, देखिए, वट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? शादी क्या होती है? शादी ये है कि यू एंड आई, लाइक टू पीपल आर गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, गोइंग टू लिव टुगेदर, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर कर रहे हो, उसमें आप राइट्स भी शेयर कर रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग समथिंग ऑन द टेबल एंड योर हस्बैंड इज ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल। वो डिसाइड कर सकते हो आप कि यार ऐसा करते हो कि मैं घर का खर्चा आई विल ब्रिंग इट टू द टेबल। आप कहते हो घर एक इंस्टीट्यूशन है, आई विल ब्रिंग इट टू द टेबल, कि आपका जो घर है ये बना लो। या वाइस वर्सा हो सकता है, वो कहता है यार मैं घर संभाल लूंगा, कोई यार नहीं है। आप कहते हो मैं कमा सकती हूँ, अच्छा आई हैव अ स्किल, मैं घर का खर्चा चला लूंगी। दिस इज हाउ यू ब्रिंग इट टू द टेबल। वो तबका क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यू डिजर्व एवरीथिंग जस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि जी आप औरत हो, यू एग्जिस्ट, यू डिजर्व एवरीथिंग। बंदा कहता है भाई क्यों देन मैं शादी क्यों करूंगा आपसे? भाई क्यों करूंगा शादी? अच्छा, वो जो एक पर्टिकुलर चीज है, रिलेशन, अ फिजिकल बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो किसको अवेलेबल नहीं है आज? उसके लिए फिर वो शादी क्यों करे? आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर्निकेशन, प्लीज माइंड इट। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल या आउट ऑफ वेडलॉक रिलेशनशिप्स को एडवोकेट नहीं कर रहा हूं, बट आई एम सेइंग कि इफ यू विड्रॉ फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द व्हाई वुड मैन टेक यू? नो वन विल टेक यू। कि ठीक है यार, मतलब अगर आपने कुछ लाना ही नहीं है ऑन द टेबल एंड ऑल यू आर जस्ट अ लाइबिलिटी फॉर मी, सो व्हाई वुड आई बी टेकिंग अ लाइबिलिटी व्हिच आई एम नॉट सपोज्ड टू? आप ये लेकर आ रहे हो कि आप ठीक है यार, आई विल गिव यू अ होम एंड यू विल गिव मी ऑल दोज रिसोर्सेज टू बिल्ड अ होम। तो आप तो राज कर रहे हो यार। इफ यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन, तो क्वीन किंग की क्वीन होती है ना, खान सामी की तो क्वीन नहीं होती। या हाँ, मतलब मैं किसी प्रोफेशन को बुरा नहीं कह रहा, बट एंकर की तो क्वीन नहीं होती ना, किंग दी क्वीन होगी। सो ट्रीट हिम लाइक अ किंग। And do you think that's one of the biggest reason that is के divorce rate बहुत high चला गया? नहीं, ये उसकी रीजन नहीं, उसकी रीजन एक और है, ये टोटली डिफरेंट डायनामिक्स है। एक तो ये वन ऑफ द प्राइम रीजंस ऑफ रिलेशनशिप्स नॉट वर्किंग नाउअडेज, ऑप्शंस, अवेलेबिलिटी ऑन द क्लिक इज अवेलेबल। आप मुझे आज बताइए, इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एवरीवन हैज ऑप्शंस। All you have to say yes to that particular message and you have options. हुआ ये है कि now we feel कि अच्छा यार नहीं तो फिर गया, I have plenty waiting in line. Same goes for women. औरत के साथ थोड़ा ज़्यादा होंगे, मर्द के भी 8-10 हैं, औरत के भी 15-20 हैं। हुआ ये है कि हमने रिलेशंस को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। फ्लिंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
क्या कहते हैं उसको, फ्लिंग को उर्दू में क्या कहेंगे आप, छोटे मोटे माशके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वो आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं ख़त्म हो जाते हैं। इसका भी एक एड्रेनलिन होता है, गेटिंग इनटू कांटेक्ट विद अ न्यू पर्सन, उसको एक्सप्लोर करना और उसको खुद को एक्सप्लोर कर देने का एक अजीब सा नशा होता है। वो नशे, उसकी भी आदत पड़ गई है। यू नो, every 6 months you are talking to a new girl or you're talking to a new guy, getting to know him and letting himself know you, exploring इसका एक 2 महीने बाद की पुराना हो गया, बोर लगने लग गया है ना, अब फोन पे कम बात हो रही है, अब नया आ गया, फिर सब कुछ नए से शुरू हो रहा है। इसको डोपामीन जो अंदर रिलीज हो रहा है ना, उसकी आदत पड़ गई है आपको। वो शादीशुदा रिश्तों में भी हो रहा है। आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस and even people ask me that, you know what, it may sound weird that I'm happily married but I have a boyfriend, I happily married but I have a girlfriend, is it okay? I mean, when did it become okay? It's not okay. But हो क्या रहा है, लोग अपनी शादियों से बोर हो चुके हैं। नई बात नहीं है, पहले भी हो चुके होते थे। हमारे बड़े कहा करते थे, बेटा एक एज भी आके ना बीवी हस्बैंड बहन भाई लग रहे होते हैं। होता है, बट होता क्या था कि चॉइस नहीं थी, आपको घूम फिर के वहीं रहना पड़ता था। सोशल मीडिया था नहीं, कितनी की अवेलेबिलिटी, महल्ले में कोई एक आधी होगी अवेलेबिलिटी, दैट्स ऑल। उसके बाद खत्म, उसके बाद उदा भी ब्याह हो गया था, गई गल खत्म, वही बुढ़ी वही बंदा। यू हैड टू कम होम एट द एंड ऑफ द डे। नाउ यू हैव डिवोर्स की, मुझे ये लगता है एक बात, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पर वो एज यू सेड कि ऑप्शंस इज वन ऑफ द रीजन कि उस वक्त ये भी था कि वेदर शायद ऑप्शंस अवेलेबल होते भी होंगे, सामने का मोहल्ले में कोई होगी या कुछ तरह होगा, लेकिन दे चोज टू बी टुगेदर बिकॉज शायद तब उस वक्त रिलीजियस वैल्यूज़ भी कुछ ज़्यादा इंस्टिल थी लोगों में। अब थोड़ा सा उससे भी हट गए। अभी भी बहुत सी हैप्पी कपल्स, बहुत से ऐसे हैप्पी कपल्स भी हैं जो बहुत अच्छा जा रहे हैं, जो कि वो, और वाई इज दिस, बिकॉज दे चूज टू यू नो मेक एफर्ट टू मेक इट वर्क। यू हैव टू पुट एन एफर्ट, यू हैव टू ऑलवेज, बिकॉज बोर तो आप एक किताब पढ़ें उससे भी दूसरी बार पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो आप एक सेम चेहरा फॉर द 60 years ऑफ योर लाइफ अगर आपने देखना है, आपकी 20 साल में शादी होगी, 80 साल तक आप जा रहे हैं, तो आपको कांस्टेंट एफर्ट उसके लिए करनी लाजमी है। एंड जिस तरह आप हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट, जैसा आप लेट्स से मैं आज से 5-6 साल पहले इस तरह का ड्रेसअप नहीं करती थी, मुझे उस वक्त वो अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं इस एक सर्टन वे में ड्रेस कर रही हूँ तो मैंने एक एफर्ट डाली ना, मैंने चेंज किया कि अच्छा इस चीज़ को मैं कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही हैं कि अगर वो पुराने हो रहे हैं तो उनको नया आपने ही करना है। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। तो वो उन पे एक भी एक्सपेरिमेंट आई थिंक आपको अगेन ये यहाँ पे विलिंगनेस आती है ना, आर यू विलिंग टू डू दैट? बिकॉज देर आर 101 ways you can always refresh your marriage. दोनों goes for both men and women as well. But the whole point is, are you willing to do that? अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि यार इंस्टेंट, अच्छा ये मैं उनसे कहूँगा कि इन एवरी रिलेशनशिप यू हैव टू पुट एन एफर्ट। आप नया बनाओ या पुराने को रिफ्रेश कर रहे हो, नए वाले को भी बाबू सोना कहना पड़ेगा, पुराने वालों को भी एक दफ़ा दोबारा आपको फूल देने पड़ेंगे। तो यार वो जो तुमने इन्वेस्टमेंट करनी है टाइम की, और शायद नए पे ज़्यादा करनी पड़े, यू नो, इम्प्रेस करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, झूठ भी 100 बोलने पड़ते हैं आपको, ज़्यादा करनी पड़े, तो वो जो आपको जान गया है, वो जो एक फूल पे खुश हो जाएगा आफ्टर 10 years or 20 years ऑफ मैरिज, वो इन्वेस्टमेंट उस पर क्यों नहीं कर लेते हो? इंस्टेड के तुम नए बंदे को शुरू से जाके गुची फ्लोरा भी खरीदोगे उसके लिए, नई जैकेट भी लोगे, मतलब सब कुछ करोगे ना यार। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन ये भी होता है, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन ये भी होता है कि हम एफर्ट कर रहे हैं, अगले बंदे से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही हमें। तो इन दैट केस डू यू थिंक इट्स वाइजर टू वॉक आउट ऑफ इट? I think it should be the last resort to walk off out of it. You have to put at least your 100% into it. क्योंकि उसके बाद देखिए होता है क्या है, रिलेशनशिप में सबसे बड़ा मसला होता है रिग्रेट्स का। अगर आप एक दफ़ा गिल्ट ट्रिप में चले गए, रिग्रेट्स में चले गए, आई विश आई कुड हैव डन दैट। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रेकअप के बाद एक स्टेज आता है जहाँ पे आप ना रिकैलकुलेट करते हो, यार अगर मैंने ये ना किया होता ना शायद वो नाराज़ ना होती, या अगर मैंने ये ना किया होता तो वो शायद छोड़ के ना जाता। ये रिग्रेट्स बहुत बुरे होते हैं। अच्छा आपने अगर 100% दिया हो ना अपना, देन आप एक कंटेंट में होते हैं कि मैंने वफा की है, मेरी वफा में कमी नहीं थी, अगला डिजर्व नहीं करता था या चाहता नहीं था तो इट्स फाइन। आपका कॉन्शियस क्लियर होता है, आप मूव ऑन इजीली कर सकते हो।
अगर आपने कोई वहाँ पे हैंकी पैंकी की हुई है एंड यू हैव लेफ्ट ग्रे एरियाज, सो वो एक रिग्रेट आपको बड़ी मुश्किल से जीने देता है. हाँ, मैं एडवाइस करूँगा, इफ़ योर पार्टनर इज़ trying to relive those memories, if your partner is trying to refresh that marriage, so please उसका साथ दें, because it takes a lot of effort to renew everything. 10-20 साल की शादी के बाद, मैं आज से 10 साल के बाद, शादी को 20 साल हो चुके होंगे, I'll be 50, so मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा दोबारा से रंगीली टी शर्ट पहनना, मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए वो रोज सॉन्ग में थोड़ा ग्रूव करना. बट मैं कर लूँगा ना, तुम्हारे लिए कर लूँगा, तो फिर तुम भी आगे से करो. मुझे अच्छा लगेगा कि यार तुम उसको रिसिप्रोकेट कर रहे हो. मैं उन पार्टनर्स को, उन कपल्स को एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका पार्टनर अगर एफर्ट डाल रहा है, कोशिश करो. अगर फिर लग रहा है कि यार नई बात बन रही है, तो फिर ठीक है, फैसला कर लो. आज के दौर में मैं ये नहीं कहता कि ये भी टैबू है ना टू वॉक आउट ऑफ मैरिज. लेकिन एक चीज़ जो कि मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ उसके, ये नहीं होती है. ये वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, आई फेल आउट ऑफ लव. ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना. मैरिज चल सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका पार्टनर लॉयल भी है आपसे, चीट भी नहीं करता, प्यार भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कर रहा है. अचानक से वन फाइन डे यू वोक अप एंड सेड, हनी, I don't feel the same. अबे क्या हो गया ऐसा? दिस इज नथिंग लाइक दैट. यू नेवर फील द सेम. यू कैन नेवर. बच्चा, उस औरत के बच्चा होने से पहले वो औरत और थी, बच्चा पैदा करने के बाद वो और है, उसकी एनाटॉमी चेंज हो चुकी हुई है. यू कैन नेवर फील द सेम. फिर दूसरा बच्चा होगा, यू कैन नेवर फील द सेम. तीसरा होगा, यू कैन नेवर एवर फील द सेम. और आपने भी कोई टॉम क्रूज बन के नहीं रहना. आप में भी चेंजेस आएंगे, आपकी भी तोंद निकलेगी, आप भी सुबह उठोगे, आपका मुंह सूजा होता है, आप भी अच्छे नहीं लग रहे होते हो, कभी कभी आप उसको अच्छे नहीं लग रहे होते हो. अगर आपको वो अजीब लग रही है ना बच्चा पैदा करने के बाद, तो ट्रस्ट मी, मैं एक औरत के माइंड से बता रहा हूं आपको, आप भी हर दफा उसको, कौन है आजकल बड़ा हैंड्स, हेनरी कैविल सुपरमैन, आप नहीं लग रहे होते हो उसको. वो कह देती है आपको ना, मेरा जानू सुपरस्टार है, बट यू नॉट ऑलवेज. तो अगर इफ शी इज कोपिंग विद दैट, तो यार आप भी उसके वो जो डेज ऑफ द मंथ होते हैं कोप कर लो ना. आप भी उसके टेंट्रम्स को थोड़ा सा देख लो. आप उसको, कितना आसान है नूर. ये पता नहीं, क्योंकि मैं मर्द होके मैं एड्रेस कर रहा हूँ मर्दों को, इतना आसान मैंने पाया औरत को खुश करना, यार खुश छोड़े, राजी करना. इट्स सो इजी. बंदे को शायद समझ आ जाए ना, उसको थोड़ी देर के लिए ना अपनी ईगो को निकाल के पॉकेट में रख ले, कुछ नहीं करना उसको. और इमोशनली इतनी, क्या कह लूं कि इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो आप. मैं, पार्डन माय वर्ड्स, मैनिपुलेट शायद एक बड़ा गलत वर्ड हो जाएगा. आप उसको अपना बना सकते हो, इमोशनली चला सकते हो उसको आप. और सेम गोज फॉर मेन एज वेल. बंदे जो है ना, वो मैं कहता हूँ उन्होंने की गाँव कोई नहीं की. आप यकीन करें, बंदा जो होता है ना वो, और मैं आई एम गोइंग टू गिव यू होली ग्रेल बाय द वे, ये गिदड़ सिंगी जो होती है ना, बंदे को आपने अगर चाहते ना मान जाए बात आपकी, ऑल यू हैव टू डू, तुम ठीक कह रहे हो, उस वेले मन जाओ दी. बंदे के अंदर ना एक अजीब सी ईगो आई होती है, यार मेरी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं हो नहीं सकता. अच्छा, मैं आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको, और ये चूंकि मैं आपको दे रहा हूँ देसी मिजाज के मुताबिक ना, हमारे सोसाइटी के मिजाज के मुताबिक, हाँ तुम ठीक कहते हो, ठीक है. ਉਹ अजीब था ना, उसको खुश हो गया घंटे डेढ़ के बाद ना, तुसी ठीक कहते सो. लेकिन मैं सोचती सर जे इंज भी हो सकता है. अच्छा हाँ नहीं आएगा तेरी, ठीक है ये ठीक है. उस वक्त क्या हुआ है, प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है मैन का. बायोलॉजिकली वो बड़े ना, उनमें शॉविनिज्म होता है, और हमारे देशियों में बहुत ज़्यादा होता है. अब मैं आपसे कहूँ कि मैन शुड चेंज, वो जब चेंज होंगे हो जाएंगे. मतलब मैं आपसे कहूँ कि यार अली, अब मुझे पता है सोशल मीडिया पे शायद ये बात होगी, यार ये बंदा क्या बातें कर रहा है, ये औरत को सबमिसिवनेस सिखा रहा है. मैं आपको डील करना सिखा रहा हूँ बंदों से, विच विल मेक योर लाइफ ईजियर. अगर मैं आपको किताबी बात में कर सकता था, देखें जी मैन शुड चेंज, दे शुड लर्न, किड़ी यूनिवर्सिटी है थे जहाँ पे औरत सिखाई जाती है, कोई है नहीं है ना, कहाँ से सीखेंगे, कोई नहीं सीखेंगे, वो सीखना सूखना उन्होंने कोई नहीं है. दे विल इवॉल्व ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता. आप जैसे लोगों को सुन के आप ऐसे शोज करते रहे, वो हो जाएंगे. बट द होली ग्रेल इज, वो जब होता है ना चार्ज अप हुआ होता है, उसके अंदर इन्फ्लेट हुई होती है मेली को, माँ ने भरी हुई है, भाई ने भरी हुई है, दोस्तों ने भरी हुई है, ए थले लगा जिमें दाल हंडी च लगी होंगी, ऐसे करके ये तो खुरच के लाना पड़ेगा.
वो इन्फ्लेट हुआ हुआ है वहां से. इज लाइक मैं कहता है जो होना है आज तू कार चेंज होना है, ठीक है हो जाएगा. और वो तैयारी करके आया था मैं बहस करूंगा. हाँ, और वहीं पे वो अप ऑन हिज स्लीव्स कि मैं दसांगा आज मैं कह रहा हूँ आज कार चेंज होना चाहिए था, ठीक है हो जाएगा. और वो एक बलून की तरह लाइक ये क्या था. टेक अ डे ब्रेक, टेक अ ब्रेक, यू नो, उसको लेट हिम काम डाउन. वो नीचे आ जाएगा, जब वो वापस उतर आएगा छत से, बिठाओ उसको आराम से इन अ हैप्पी गुड मोमेंट, डिनर करते हुए, मूवी देखते हुए, कुछ भी करते हुए ना, स्टार्ट टॉकिंग टू हिम ना. योर आइडिया वाज गुड बट आई आल्सो हैव अ सजेशन. अच्छा मैं आइडिया भी अच्छा था लेकिन ये भी अच्छा है. फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है नूर शादी. जिसे चलानी होती है वो चला लेता है, जिसे नहीं चलानी होती है उसके लिए एक बहाना ही काफ़ी है. वो एफर्ट दोनों की तरफ से बुटन होगी तो होगा. इस सारी चीज़ों का अगर हम एक क्रक्स निकालें, व्हाट would be 3 advices that you would give to single people and to people who are struggling in their marriages? मेरी एडवाइस सिंगल लोगों को ये है कि टेक योर टाइम, डोंट रश टू इट. और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आपकी अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि यार यू नो वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस पर्सन दिस पर्सन दिस पर्सन. वो जो आपका सोलमेट होता है ना, जो आपको लगता है कि सोलमेट होना चाहिए, वो क्लैरिटी के साथ आएगा. उसमें इफ एंड बट्स नहीं होंगे. एंड स्पेशली एवरीथिंग आफ्टर बट इज लव तो कुछ और है बट इज रिडिकुलस. इट डजंट मीन anything which comes after but. So if you are looking for a healthy relationship, wait for it. It will come to you. Even if you're looking for it, even if you bump into someone, that particular person will come into your life in a very clear manner. There won't be any confusion involved. और जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए मेरी जो 3 एडवाइसेस हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. किसी ने कहा था कि यार कॉम्प्रोमाइज और यू नो सिमिलैरिटीज़. पहली बात तो ये सिमिलैरिटीज़ की तरफ तो बिल्कुल मत जाए. ये सबसे बड़ा झूठ है जो कहते हैं ना कि सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए. देखिए मेरी बात सुने, मेरी लाइफ में कुछ वॉइड्स हैं, कुछ कमियां हैं, मेरे पार्टनर की लाइफ में कुछ कमियां हैं. ऑपोजिट होते हैं. आप मेरे उन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे होगे, मैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहा हूँगा. सिमिलैरिटीज़ अक्सर क्लैश कर जाती होती है. सो अगर आपको लग रहा है कि हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि वो कपल्स जो टोटली ऑपोजिट है पर्सनालिटीज़ में, they do very well. yes they do, they get along very well. कपल बहुत, एक पार्टनर बहुत काम है, एक बहुत एनर्जेटिक है, बहुत शोक चंचल है, एक जो है वो गुस्से वाला है कि इंतहाई ठंडा है. तो वो चल रहा होता है. वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना एक दूसरे को, कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की वॉइड को फिल कर रहे होते हैं वो. तो ये चीज़ देखें. और जो मेन इंग्रेडिएंट मुझे अब तक जो समझ आया है ना जी, वो है फ्लेक्सिबिलिटी. यू हैव एन ओपिनियन, आई शुड बी फ्लेक्सिबल टू एक्सेप्ट इट. You have certain habits, I should be flexible enough to accept it, or if I want to change them, I should be ready enough to work on them. आप देखिए कि इस पूरे खेल के अंदर, शादी के खेल के अंदर सिर्फ एक चीज़ है डिमांड हो रही है कि यार यू नो बट फ्लेक्सिबल आप हो जाओ. वो इतना मान ले तो क्या ही, इतना मान ले, बस आपको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है. एंड ट्रस्ट मी, रिश्ता चल जाए. दिल का रिश्ता जो होता है ना, वो ऐसे ही चलता है. ट्रू. आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस कि एज इंडिविजुअल्स भी आप चेंज हो रहे होते हो. अगर आप अपने आप के इवॉल्व हो रहे होते हो. सो जब आप कहते हैं ना कि ओ ये बंदा ऐसा है या ऐसा नहीं है, जब आप सिंगल लोगों के लिए मैं कहूँगी, तो यूर नॉट, आप भी खुद वैसे नहीं होंगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद शायद. तो जो चेंजेस आ रहे होते हैं आपको अडाप्ट, लाइक यू सेड, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती है शादी में, कि अडाप्ट करना टू द चेंजेस और फ्लेक्सिबल रहना. तो इफ़ यूर फ्लेक्सिबल टू योर सेल्फ कि अच्छा आज से 6 साल बाद मैं कुछ और हूँ, तो why wouldn't you be open to the idea of the other person changing? Exactly. So that's, I think, the whole crux. I really loved it. Flexibility and adaptability, I think, is even I learned a few things from many things from you rather. Thank you for your time, Ali. Pleasure it was lovely, you know, indeed, having indeed. you. I hope कि जो आप लोगों को इस सारी conversation से सीखना चाहिए था वो आप सीखें. And I hope कि जो matters हैं, जो actual issues हैं, उन पे भी बात की जाए. I'll see you in the next episode. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.